Hello, friends. Good morning. Namaskar. This is Captain Purva. As you all know, I am an ex army officer. So, today, after a long time, I think it's been a gap of 2 3 weeks now. I was quite busy in the meantime. So, like, I couldn't upload any videos, and I couldn't come live also in the YouTube sessions on Sundays. So, my deep apologies for that, friends. But this is a short video I wanted to share with you in just like a jiffy, like I thought, so that I don't break that continuity with you. The topic for today's, what I felt like is like contentment, that is santushti, and jealousy, that is ईर्ष्या जलन. फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि संतुष्टि क्या है. क्या आप अपने आप से संतुष्ट हैं? आर यू रियली हैप्पी विद योर सेल्फ? आर यू रियली कंटेंटेड विद योर सेल्फ? आर यू बी बोलते हैं ना, बी योर सेल्फ. आर यू हैप्पी द वे यू आर, द वे थिंग्स आर मूविंग इन योर लाइफ? आस्क योर सेल्फ. If you feel sometimes that something is missing, something is lacking, the grass is greener on the other side, वो लोग कैसे मेरे से ज़्यादा खुश हैं, उनके घर में कैसे इतनी शांति है, मेरे घर में क्यों अशांति है, वो मेरे से कैसे आगे प्रोग्रेस कर गया, मैं तो वहीं के वहीं रह गया. तो दिस इज़ कॉल्ड डिससेटिस्फैक्शन. आप कभी भी, हम लोग कभी भी लाइफ में संतुष्ट नहीं रह पाएंगे इफ़ वी आर टू एम्बिशियस. हम लोग हमेशा ज़्यादा आगे बढ़ने की होड़ में हैं, रेस में हैं. इट्स लाइक दिस वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्नेक्स एंड लैडर. एक आगे बढ़ता है, वी स्टार्ट पुलिंग दैट पर्सन, कि हाउ द पर्सन इज डूइंग वेल, स्टार्ट एक स्नेक की तरह यू स्टार्ट वांट टू हॉक दैट पर्सन एंड बाइट हिम. So this is, as we are progressing in life, we are learning, we are also getting now immune to these things. We are knowing that this is going to happen, so we are mentally prepared. But sometimes we don't know what we are going through. हमारे अंदर क्या चल रहा है, वी डोंट नो कि हमें ये शायद मुझे ये प्रॉब्लम है, आई एम इनसिक्योर, या मैं डिससेटिस्फाइड हूँ लाइफ से. सबसे पहले आई विल बिगिन दिस वीडियो विद अ शॉर्ट स्टोरी. It's a very famous and common story actually, if you have heard. There was a crow. उस क्रो ने एक बार, ही सॉ द स्वान इन द पॉन्ड एंड लुकिंग एट द स्वान, उसने हंस को देखा. जब उसने देखा तो ही सेड, ओ ही सो ब्यूटीफुल, वेरी सो क्लीन, वाइट, ग्लोइंग. आई एम सो डार्क एंड डल एंड ब्लैक. सो ही वेंट टू द स्वान. स्वान, यू आर सो ब्यूटीफुल, आई एम वेरी अनहैप्पी विद माई सेल्फ. हाउ डू आई मेक माई सेल्फ सो ब्यूटीफुल लाइक यू एंड आई विल बी हैप्पी? He said, no, 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 I am not the only one who is like, you are not the only one who is unhappy. I am also unhappy, Swan said. And because parrot has got two colors, I have got only one. So then crow said, yes, you are right. Then he flew to the parrot. He asked parrot, oh parrot, how are you so beautiful? You got such beautiful bright colors, green and red. Can you please tell me what makes you are so happy? How can I be so happy? Parrot said, no, 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 I am also not happy. I have got only two colors. Look at the peacock. Peacock has got so many colors. Crow said, oh yes, he is right. Then he goes to the peacock. He flies to the peacock, and the peacock was in a cage inside a zoo. So many people, there were 3 4 peacocks in a cage, inside the cage, and people were flocking around to have a view of them. He flew inside the cage. कौवा अंदर पहुंचा कि भाई मोर, तुम इतने सुंदर कैसे हो? मैं तो इतना सुंदर नहीं, मैं केवल काला हूँ, देखो मैं कितना दुखी हूँ. तुम इतने सुंदर हो, तुम इतने खुश हो, बताओ मैं क्या करूँ? मोर ने बोला, तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं इतना सुंदर हूँ और मैं इतना खुश हूँ. ऐसा नहीं है. मैं इतना सुंदर हूँ, इतना कलरफुल हूँ, तभी लोगों ने मुझे पिंजड़े में बंद किया है. तो ये जो एक बात आ जाती है कि आप पिंजड़े में बंद हो जाते हो, आप उस सुंदरता के कारण आप कैद हो जाते हो. जो लोग महलों में रहते हैं, हु आर सो ब्यूटीफुल, मे बी heroes and heroines, they are public figures, then but they are inside the closed arena, they are inside the closed area, they cannot just move around. They change their makeup and get up and then they move around. This is what I read in magazines long ago. So friends, मैं इतना बोलूँगी, आप जो हैं, whether you are a crow or a peacock, be satisfied with what you are. Then crow came to know that peacock, being so beautiful, is still also not satisfied. Peacock is comparing himself with a crow. Ki, bhai, you are free, you are happy, happier than me. Whereas crow is feeling that peacock is happier than me. So it is going on everywhere. Nobody is happy in a way if you are not happy with yourself. So now point comes. What makes us dissatisfied? What makes us jealous? It's a changing world. Like since the beginning of the world, like during the apes time, we are always thinking that yes, we are all the time, the from
one evolution to another phase, and a lot of years and decades are passing, just centuries are going. So that change is always welcome in life. We are looking forward to changes. The technology is changing, everything is changing. Keeping that in mind, we feel that we are lagging behind the race. हम शायद पीछे छूट गए. अगर उसने ये किया है घर में तो मुझे भी करना था, उसके पास ये है तो मुझे भी चाहिए, कहीं वो रेस में मेरे से आगे ना निकल जाए. ये चीज़ हमारे कंपैरिजन, दैट क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, हम हमेशा दूसरे को देखते हैं कि उसने वो चीज़ कहाँ से की, उसके बच्चे कैसे सक्सेसफुल हुए. अगर नहीं हुए, ओ वेरी गुड, उसके बच्चे सक्सेसफुल नहीं हुए, दैट इज़ जेलसी. मेरे भी नहीं हुए, चलो कोई बात नहीं, मेरे हो गए, ओ दैट तो बहुत ही अच्छी बात है. तो दिस वे, दैट जेलसी, दैट एनविटी जो हम बोलते हैं, वो चीज़ हमें कभी अंदर से नहीं खुश करने देगी. अपने ऊपर फोकस करिए फ्रेंड्स. मैं इतना बोलूँगी, हमें अपने ऊपर फोकस करना है रादर दैन दूसरे के ऊपर. व्हाट वी आर डूइंग, हम गलत कर रहे हैं. जैसे साइकोलॉजी में बोलते हैं 3 सर्कल्स आर देयर. एक सर्कल में पहले हम बोलते हैं जो क्लोज सर्कल है, दैट इज़ फॉर द नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस. उस क्लोज सर्कल में आप अपने जो आपको प्यार करते, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके माता पिता, पति, वाइफ, बच्चे, ये सब आपके क्लोज सर्कल में है. सेकंड सर्कल आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके नेबर्स हो गए. थर्ड सर्कल में आपके वर्क कोलीग्स हो गए, या कोई जैसे हम जैसे जो कभी कभार मिलते हैं. ये चीज़ें आपको प्रायोरिटी शुड गो टू द फर्स्ट सर्कल. इनको हम देखिए, इनमें टाइम निकालें, इनको फोकस रहें कि भाई ये मैंने इसको आज देखा कि नहीं ठीक से, मैंने खुश रखा कि नहीं, मैंने इस फर्स्ट सर्कल वाले को पूरा टाइम दिया कि नहीं, अटेंशन दिया कि नहीं. दिस इज़ माई प्रायोरिटी. वेयर एज व्हाट हैपन्स, we shift the priority to the next circle. This next circle, which is full of neighbors, this friends, so then and they are outsiders. We may be connected to them, we may be having a good bond, but we don't know what is happening inside the family because we are not their family members. Since we don't know the whole thing, we end up comparing ourselves from a distance, and then we see, हम देखते हैं कि ओ इसके पास नई गाड़ी आ गई, मेरे पास तो बहुत पुरानी है, मैं क्या करूँ, ये मेरे से आगे. तो दिस इज़ द कंपैरिजन जो हमारे दिमाग को हमेशा खाता रहता है. इट कीप्स हॉन्टिंग. साइकोलॉजिकली इट इफेक्ट्स अस. वी आर इनसिक्योर एंड समवेयर वी आर एंक्शियस ऑल्सो, डिप्रेस्ड ऑल्सो. हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, वी आर इरिटेटेड बिकॉज वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद वॉट वी हैव. We are over curious, we are over ambitious to achieve that target what they have been doing. Maybe they have lots of money from a good background, they have lots of property, whatever, who knows. तो दिस वे वी डोंट नो द बैकग्राउंड ऑफ अ पर्सन. हमें नहीं पता वो कैसे अपने आप को ऐसे रख रहा है और आप ऐसे रख रहे हो. वी डोंट नो, वो अंदर की बात है, हमें नहीं पता. तो हम वो नहीं जानते हैं. जब हम अपने आप, हमारा प्रायोरिटी शिफ्ट फ्रॉम द क्लोजर सर्कल टू द बिगर सर्कल, सेकेंड वन, विच डिसबैलेंसेस द होल थिंग. जिंदगी को पूरा तालमेल ख़राब हो जाती है. हम हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं, अनकंटेंटेड रहते हैं, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, असंतुष्ट हैं. ये चीज़ ना करें. सबसे पहले हम बोलें कि ये एक्चुअली नेचुरली ये हो जाए, इसलिए हो जाता है कि ये सोशल इन्फ्लुएंस में हम लोग आ जाते हैं. हम सोचते हैं, जैसे मैंने पहले बोला, कि इफ़ वी आर नॉट डूइंग दिस वी विल बी रनिंग लैगिंग द रेस. हम लोग पीछे छूट जाएंगे रेस में. तो ये चीज़ें अगर हम अपने मन से निकाल दें, जैसे गौतम बुद्धा से इसकी बी कंटेंटेड, इन चीज़ों से ऊपर हो जाओ, वो चीज़ हमें अचीव करने में टाइम लगेगा. एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी. एक फिशर, एक बड़ा सा बिजनेसमैन, सम मिलियनियर पर्सन, ही वॉज वेरी बिजी एंड वन फाइन डे ही कुड फाइंड अ टाइम टू वॉक द बीच. वो बीच के साइड में वॉक करने निकला. उसने एक मछुआरे को देखा. मछुआरा मछली पकड़ के आ रहा था. अराउंड 2-3 kg मछली उसके पास थी. उसने बोला, तुम कितनी मछली इतनी देरी में पकड़ लेते हो. बड़ा खुश होकर गाना गा रहा के आ रहा मछुआरा. तो मछुआरे को पूछा, तुम कितना टाइम लगता है इतना फिश पकड़ने में. मछुआरे ने बोला, सर मुझे मे बी अराउंड इट टेक्स अराउंड 1-2 घंटा. ही सेड, तुम क्या करते हो दिन भर. ही सेड, इसके बाद मैं घर जाता हूँ, इसको लेके जाता हूँ, मेरी बीवी खाना बनाती है, हम लोग खाना खाते हैं, फिर मैं थोड़ा सोता हूँ, शाम को चाय कॉफ़ी पीता हूँ, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ गाना वाना करके मैं घर खुश खुश आ जाता हूँ. ही सेड, अगर तुम चाहो यही मछली, अगर तुम थोड़ा ज़्यादा टाइम निकालो, तुम ज़्यादा मछली पकड़ोगे. तुम एक छोटी बोट में जा रहे हो, तुम बड़ी नौका खरीदोगे, तुम्हारे पास पैसे बनेंगे, तुम फिर बड़ी स्टीमर खरीदोगे, बड़े और लोगों को रखोगे. आज इतनी मछलियाँ, कल इतनी मछलियाँ पकड़ोगे. फिर उससे पूछा, फिर मैं इतना करके क्या करूँगा. ही से, तुम्हारा बड़ा ऑफिस होगा, तुम इंटरनेशनल फिगर बन जाओगे, तुम लोगों के साथ बिजनेस करोगे, अब बड़े मेरी तरह बन जाओगे, हाई फाई एकदम. फिर उसने बोला कि सर फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा इतना अच्छा, इतना ऊपर बन के. ही सेड, फिर तुम शाम को आराम से घर में सोओगे, दोपहर को खाना खाओगे, सोओगे, फिर शाम को चाय कॉफ़ी, फिर शाम रात को गाना करोगे, घर आओगे खुश. फिर मछुआरे ने बहुत बड़ी बात बोली कि सर ये सब तो मैं अभी भी करता हूँ. अगर मुझे अंत में वही करना है, इतने करोड़ों इतने लाखों कमाने के बाद, अगर मैं फिर भी भागता हूँ पैसों के पीछे, आई एम स्टिल नॉट हैप्पी. तो पर लेकिन लास्ट में तो मैं वही करता हूँ. आई विल नॉट नेवर बी कंटेंटेड. आई एम कंटेंटेड विद वॉट वी आर. सो फ्रेंड्स, व्हाट आई मीन टू से, बी हैप्पी विद वॉट यू हैव.
Don't always chase. And we don't know the background of others, how they have achieved that. We don't know the story of struggle of others. दूसरों के बारे में हमें नहीं पता है. तो ये कंपटीशन, ये जेलसी, एक दूसरे को नीचे करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला. हम अपने में फोकस करें कि मैं अपने आप को कैसे बेहतर बनाऊं. आर यू गेटिंग इट? फोकस ऑन योर सेल्फ, नॉट ऑन अदर्स. फिर हमें सबसे पहले एक और चीज़ मैं बताती हूँ, एक लास्ट में थोड़ा सा बताना चाहूँगी, हाउ टू ओवरकम जेलसी. इफ़ यू नो यू आर इनसिक्योर, यू आर जेलस, दैट इज़ यू नो योर सेल्फ वेल. आपको खुद के बारे में पता है, मुझे नहीं, मैं आपको नहीं जानती, आई डोंट नो. सबसे पहले एक्नॉलेज, यस आई एम जेलस, यस आई एम इनसिक्योर. एक्नॉलेज, पहले हमारे एक स्टेप खत्म हो गया कि हाँ मेरे में ये कमी है. फिर अगर आपको लगता है कि दूसरा आपकी बात नहीं समझ पा रहा, आपको बिना बताए फ्रेंड्स चले जाते हैं, कई केसेस आते हैं मेरे पास कि फ्रेंड्स चले जाते हैं यंग लोगों के, यंग एडल्ट्स के, एंड मुझे नहीं बताते, मैं छूट जाती हूँ पीछे या छूट जाता हूँ. तो आप उनसे बोलें, भाई क्या हो गया, मुझे नहीं लेके गए, मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रही थी, मुझे नहीं लेके गए. तो कम्युनिकेट, मन अगर आप रखोगे, देन द फ्रेंड्स विल टेल यू समथिंग, लिसन टू दैट. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हम सोचते हैं वी आर करेक्ट इन आवर पोजिशन एंड समबडी थिंक्स दैट यस दे आर करेक्ट इन देयर वे, देन वी विल नेवर पैच अप. बी एम्पैथेटिक. समझिए कि उसके अंदर क्या गुजर रही है, उसने आपको क्यों बोला ऐसा. दिस वे यू विल बी इन अ बेटर वे, यू विल बी हैंडलिंग योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स सराउंडिंग्स. सो दिस नीड्स सम ग्रूमिंग ऑल द टाइम. इफ़ यू फील कि नहीं उसने ज़बरदस्ती किया, मेरे को उसने दुश्मनी किया था, ये वो, तो हम ओवर प्रोसेसिंग ऑफ थाट्स में रह जाएंगे. हम हमेशा ये रह जाएंगे कि यस दूसरा मेरे के ऊपर जज कर रहा है, मैं छोटी हो जाऊंगी या छोटा हो जाऊंगा, मेरे पास ये नहीं है, तो हम फिर ज़्यादा असंतुष्ट हो जाते हैं. दिस इज़ अ विशियस साइकिल जो चलती रहती है. सो बी योर सेल्फ फ्रेंड्स, बी कंटेंटेड. अपनी अच्छाइयों को देखिए. आई एम श्योर आप में अच्छाइयाँ, बुराई, मेरे में भी हज़ार बुराइयाँ हैं, पर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं. आई एम हैप्पी विद माई गुड वर्च्यूज एंड वॉट एवर गुड क्वालिटीज़ आई हैव. राइट डाउन योर गुड क्वालिटीज़. बी हैप्पी एंड कंटेंटेड विद वॉट यू हैव, एंड येस focus on your negative qualities to improve them. And this is the way you should be very happy, contented. 2 रोटी भी है आपके पास, आपको हाई फाई बिल्कुल पिज़्ज़ा बर्गर नहीं मिल रहा हमेशा, इतना बजट नहीं है, खुश रहिए. जब होगा बजट खरीद लीजिए, उस लायक बनाइए. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. हैव अ गुड डे एंड टेक केयर. नमस्कार.